Hello everyone, welcome to my channel. My name is Kawaljeet. I'm your host today. And today, friends, I want to introduce one of my very good friend. His name is Mr. Wasim, and I would like to tell a few things about him. He has started his career by being personality development coach, and he has been into educational business since I believe 4 to 5 years. And he's very young, younger than me also, but his energy is very passionate, and even I too also get motivated from him. And so actually I would like to take you a little background of him. He has started his career 4 to 5 years back, and he's into personality development trainer. He has given the coaching in the several colleges and universities uh, in Faridabad and outside Faridabad, Delhi area, so many universities also. And his work style is unique. You can see the enthusiasm in him. And so I'll not waste much of your time. So let's welcome our star of the day, Mr. Wasim Chaudhary. Hello, Mr. Wasim. So can you switch on your video? Yeah. Hello. Hello. Hello, So sir. it's Good nice. afternoon. Yeah, good afternoon. So after a long while, we are talking right now. Yeah, definitely. Yes, yes, Because we are engaged in business right now, because we don't have time. Sometimes I just want yes, to say, I want to come and Jeet, but I right. don't have time. I just want to manage. Yes, Today, definitely, I manage the time. Then definitely, I said, ki today I want to meet Kawal sir. yes, 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 yes. It's such a privilege. Actually, whenever I'm talking to you, I feel much enthusiastic because the moment we met, your enthusiasm was overflowing. So Yeah, same here. yeah, yeah, yeah. Thank you. So Wasim, so how you're feeling Yes, sir. right now? Oh, I'm feeling rock. That's great. I believe that you're right And what now not about at. you? Yeah, I'm good. I'm also feeling very nice. So Great. I believe you're It's not at home. So suddenly I asked you for joining an interview. So that's why you, in a it's very you. haste, you make the decision to talk to me, right? It's my Thank you. pleasure. Thank you. So, Basim, I would like to ask a few questions for the interview so that our viewers also can know more about you. So, Yes, why not? yeah, yeah, yeah. So, my first question to you is, how did you got the idea of starting an education business? How this idea came to your mind, and how you did started? Actually, sir, when I was doing BBA at the time, I just want to do job. My family always suggested to me, you should do job. My Right. mother always said to me, you should do job when you complete your graduation. After completing graduation, I joined BPO. Okay. Actually, I was too much fond of means earning money. Right. Always I try to means make money. Right. Whether I'm just working for a couple of hours, sometimes I just want to sit on shop, grocery shop, Okay. where I just want to see that how people connect, how to Right. connect the people, how Right. to make a good relationship with friends and people. Right. After completing my graduation, then my father said that you should get married right now. Then I told him that right now it's not my age where I just want to get married. Right. After Right. completing graduation, Mhm. then I thought that I should do MBA. But Right. once I asked myself, why should I do MBA? Right. There was my friend, he has completed MBA, Okay. but he was sitting idle at home because he was not getting job. Mm-hmm. But I said myself, if I do MBA, so what would be the procedure for doing MBA? Okay. Then I have visited many states such as Himachal, Kashmir, many more means places where I see people how to talk, how to earn, how to do business. If you are just doing service for others, it means that you are means working for others. Others are means earning money. Only you are not living your life. You are cutting your life. That's true. If That's you true. really want to live your luxurious life,
So Right. it means that you have to do something unique where nobody can do. Right. Right. Then ideas comes in my mind, always created ideas. Then once my friend said that you should be teacher. Mhm. Then I asked myself, should I become teacher? But I Yes. don't have caliber to become teacher. Mm. So he said to me, because you have got a lots of enthusiasm. Right. If the first thing everybody needs, you should have got a gift of gab. Yes. Yes. You know what is the meaning of gift of gab, sir? Gift of gab. It means that बात करने की कला you should have got it. Oh Then I yes. learned these things. Yeah. Yeah. I gradually I learned these things. I used to movies in theater. So what should I do at the time? I used to have got a notebook and then a phone. Then I used to write every dialogue, every moment, which was a perfect. Right. Then Right. I used to copy these things in my life. Okay. How to talk, how to sit, how to dress up. Everything I have copied from the movies. Right. Right. Means movies constructed my life. Right. Right. Somebody is saying movies are distracting, but movies constructed my life. Everything. Right. Then after completing MBA, then I started my job, as you know, as a London Academy. I was working Yeah. there. Yeah. I would like to tell Somebody our was viewers that we met at London Academy, which was an English before speaking course. Yeah. Yeah. definitely. Continue. Continue. Then I started means tuition classes at my village. So Yes. there were two students. They came to me. They were saying to me, "Will you please teach us?" I said, Hmm. "Obviously." So they asked me, "What time should we come?" I Right. told them, "You should come after 6 o'clock." Right. And then they used to come. Yes. Only they used to pay 200 rupees Yes. Yes. per month. But no issue. I don't want to money. Or at the time, I did not used to get a money. My focus was only I just want to give the free of cost education at the time. Wonderful. But by and by, time has changed. Hmm. Within 2 to 3 years, I have got a 50 student there. Oh wow. That's very good. So how you got Then 2 to 50 students? It's a very long journey because we are also trying to do such as you, I even personally me also. But from starting from 2 student to 50 student, it's a very long journey. I can understand. actually, what people do, I have learned from these things. The owner of Amazon, Yes. Jeff Bezos, Right. and the one man, Dr. APJ Abdul Kalam, he told that if you really work hard, definitely you will enjoy your rest of life. Means I said one thing, if I give the result, Right. I don't want to do means advertisement. People are what are the people doing? First, they just make the infrastructure beautifully. The Right. second purpose is that they just advertisement. Yes. Nobody will come by advertisement. Right Definitely. now, first of all, you have to make a brand. How Yes. can you make a brand? First of all, you have to make brand yourself. When you Wonderful. become a brand, definitely everybody will join you. Definitely. So first of all, I did these things. After completing these things, my focus was totally result. If Yes. I give the result, definitely people will connect to me, and Right. then they will praise to me. कि how does he teach? How does he teach? How does he means manage the students? Wonderful. Wonderful. और एजुकेशन की सबसे बड़ी बात ये होती है सर कि जो भी आप पढ़ाते हो ना Yes. उस फील्ड में बच्चा ना बोर नहीं होना चाहिए जहां बच्चा बोर हो गया वही आपसे स्किप हो It should जाएगा be entertaining too. That's correct. That's right. नीड टू एंटरटेन Yes. 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 you have to change yourself. Sometimes you should teach, sometimes you should conversation, sometimes you should have go to some activities like Mm. as linear activity, jam session, GD. It Right. means if children are getting these things, definitely they will say that I am learning, I Right. am doing better. Right. If you are teaching one thing only, students will get bored too much. They are not able to speak. Yes. They Yes. will say, I want to leave this. So you are So saying that every you day, have brought the variety in your uh, teaching pattern. So because of the yeah. variety, you put that student to stick with you for a long term, and that's why you bring your student more than 50. And now your students are how much your students right now?
Right now, I have 200 students. Oh, wonderful. Amazing, amazing. That's great. By the God So, of God. okay, okay. So what my question, the second question is, how many hours in a day you work on an average? How many hours? 8 hours. 8 hours. 8 hours. Okay. So in eight There is hours, no break. oh, There is wonderful. no break. 12 to 8. Okay. So if I I talk manage about, by the, okay, okay, that's sorry. very good. If I talk about your typical day, uh, how you describe your typical day from morning till evening, what do you do? Actually, I get up early in the morning, 6 a.m. Okay, Then I get ready for gym, very good. go to gym. Then I spend the 1 to 2 hours there. After coming from there, just I manage myself. I just talk. I just pick up the some topics. Why crime is increasing in India? Why corona is? What we have learned from coronavirus. These topics I have to prepare every day. Mhm. After completing this, I have to drop ma'am from ma'am's college, DITMR. Yes, yes, Then when I come from there, yes, then I just rest for couple of hours. right. 11 to 12, I just take lunch very early because I don't have time after 12. Yes, because you don't want to waste your time because you have to teach Yeah. so many people, so many students. Yeah. After 12 o'clock, students come at my center, then I just take them Right. 12 to 1. After Okay. 12 to 1, then 1 to 2, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8. Then Wonderful. completely engaged in my work. Okay, okay, okay. Here means many students, those who have completed BTech, BBA, diploma, all school growers, college growers comes to me. So, what are you teaching to them? What is your main teaching pattern? Uh, Many those who are beginners, I teach them vocabulary, how to Vocabulary. learn. First of all, I teach them how to face interview. Okay. In interview, in if we talk about interview, there are two kind of interview. Teach them formal and informal. I teach everything what is informal, what is a formal Mhm. interview. After learning these things, they, one day they have got. After getting a one day, they come next day. They give the interview, and Right. then they have learned. They have cleared interview. In after interview, they learn vocabulary like what, when, why, where, how much, how many, ever, never, whatever, during, tonight, in between, something, nothing, next, last, day before, yesterday. Within 2 days, student learn 56 vocabulary within 2 days. Oh, wow. After learning these things, then I teach them ismr without verb. It means this, and this, are this. With is we use singular subject, plural, this. After that, those who are beginners, they get to know about, okay, how can I make sentence. They will get to know about, I can make sentence right now. I will tell them this is the sentence formation, how to make 6 टाइप के होते हैं, और उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने आंसर्स होते हैं, वो सारी चीजें बतानी होती है. फिर Right. बच्चे को पता लग जाता है धीरे धीरे कि हाँ, आई एम लर्निंग. Yes. आफ्टर लर्निंग दिस थिंग इज एम आर वॉज और विल बी, ये शेड्यूल होने के बाद फिर होते हैं, स्टार्ट होता है यूज ऑफ इट्स. Yes. इट्स नो यूज, जैसे खेलने का कोई फायदा नहीं है. फिर उनको पता लग जाता है यहाँ पे, अच्छा ये वर्ब होती है, ये विदाउट वर्ब होती है, ये एडजेक्टिव होता है, ये वर्ब होता है. फिर वो मिस्टेक नहीं करेगा. स्टार्टिंग में बच्चे मिस्टेक करते हैं, आप इस एम आर पढ़ाया विदाउट वर्ब, वो लिखता है आई एम गोइंग टू फरीदाबाद. दिस इज अ कम्प्लीटली राइट सेंटेंस, बट राइट नाउ दे हैव टू मेक विदाउट वर्ब. Mm. फिर उनको धीरे धीरे पता लगता है. जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है, उसके बाद बंदा विद इन 3 मंथ्स के अंदर, अगर बात की जाए, एक बंदा जो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, उसको विद इन 5th मंथ के अंदर 1,000 से प्लस वोकेबलरी और एडजेक्टिव वर्ब सब याद हो जाते हैं, प्लस में रूल क्लियर हो जाते हैं. फिर बच्चे की प्रोग्रेस यहाँ से स्टार्ट होती है, जो स्पोकन के लिए होती है. फिर जी. हम टॉपिक छोटे छोटे प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वाटर, न्यूज़पेपर, मनी, बुक्स, इंटरनेट, बहुत सारे टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं. फिर बच्चा धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है. फिर उससे खुद लगने लगता है, यस आई एम लर्निंग नाउ, एंड देन आई कैन स्पीक इंग्लिश. Definitely. ये फर्स्ट बुक कंप्लीट होने के बाद फिर जैसे उसको नेक्स्ट बुक दी जाती है सर, उस टाइम बच्चे को इतनी कमांड हो जाती है कि उसको पता चल जाता है कि ये फ्रेजल वर्ब है, ये वर्ब है, ये एडवांस वोकैबुलरी है, ये एडवांस ग्रामर है, ये Mhm. टेंसेज है, ये मोडाल्स है, ये सेमी मोडाल्स है, ये प्रीपोजिशन है, ये कंजक्शन है, ये पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है. नाउ आई कैन स्पीक एवरीवेयर वेयर आई वांट टू स्पीक Yes. बिकॉज आई हैव लर्नड इंग्लिश. Right.
This is the So combo of English spoken. yes, I got your point, and you elaborated very widely. That's very good. Thank you. So one more thing, Wasim, I have heard about you that you have changed your name to Wasim Chaudhary. So I would like to talk about the story about that. Why you did that? Why you changed your name to Wasim Chaudhary? एक मैं छोटी सी शायरी सुनाना चाहता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल इरशाद. क्या खूब लिखा है ऊपर वाले ने, हम्म, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी नीयत साफ होती है. नहीं हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है. सी ना मेरा एक होगा ना लाख तेरा होगा. बिल्कुल. ना कर साहे शरीर पर गुरूर इतना, हम्म, तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा. बिल्कुल बिल्कुल. जिंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों, हम्म, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता है. बहुत सही बहुत सही. क्या खूब करामात है इस दुनिया के, जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है और मुर्दा डूबकर बाहर निकल जाता है. वाह. तो इसलिए मेरे दोस्तों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो. ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी, ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी. बिल्कुल तो बिल्कुल. ये चेंज मैंने इसलिए चेंज किया है अपना नाम कि अगर आपको कुछ ज्यादा बड़ा बनना है, हम्म, वसीम नाम में कुछ नहीं रखा है. हम्म, अगर आप नाम के साथ ऐसा सरनेम यूज करोगे, क्योंकि हमारा सरनेम हम अलवी है. अच्छा. ये चीज मैंने, एक मेरा दुबई का एक मेरा फ्रेंड था, ओके. उनका नाम इंग्लिश में बोले तो एडम बोलते थे, हिंदी में बोले तो आदम नाम हाँ था दोनों उनका. दोनों. तो उनसे मेरी मीटिंग हुई थी, तो पहले वो शेख थे, तो शेख यूज नहीं करते, वो चौधरी यूज करते हैं. अच्छा. तो आई वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम हम्म, टू मच. अच्छा. तो ही टोल्ड मी दैट यू शुड बी यूनिक. यहाँ ओके. पे सबको पता है वसीम खान रखेंगे, राम वसीम अलवी रखेंगे, वसीम तौर रखेंगे, वसीम मलिक रखेंगे. तो यू शुड हैव गॉट अ यूनिक नेम वेयर एवरीबॉडी कैन मींस रिकॉग्नाइज यू फ्रॉम योर नेम. सो अब लोग वसीम नहीं बोलते हैं, अब चौधरी साहब बोलते हैं. बहुत बढ़िया. वो था दैट डिग्निटी. ओके. सो वंडरफुल. एक्चुअली आपका स्टोरी मेरे को काफी अच्छा लगा. एक्चुअली मैं भी ये थैंक यू. आई वाज अबाउट टू आस्क यू व्हाई यू चेंज योर नेम टू वसीम चौधरी, बट thanks to this So have session. you got it? Yeah. Now I got it. So, Thank you. Wasim, tell me one thing. What makes you inspired? What motivates you? Because I have seen so many people like you. They want to make a business, but they start and they walk a little bit, but they fall down. But what एक was unique in you? Why? What makes you motivated? लेट मी टेल यू. Yes. एक कहावत है, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही. बिल्कुल. मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं. बहुत सही बहुत सही. तो आपको बस निकलना है, वर्क करना है, जो आपका टारगेट है ना उसको बस उस पे छा जाओ. आप सोचते हो यार इंजीनियर भी बन जाऊं, आप सोचते हो यार एमबीए कर लूं, आप सोचते हो यार डॉक्टर भी बन जाऊं. भाई जो आपको बनना है ना, पहले वो टारगेट. आप सपोज करो एक बस जाती है बल्लमगढ़ टू मुंबई, और आपने बस कंडक्टर से नहीं बोला कि भाई साहब मुझे दिल्ली उतरना है. क्या वो बस आपको ड्रॉप कर देगी दिल्ली में? पता ही नहीं आपका डेस्टिनेशन कहाँ है, ले जाएगी. तो हम्म, पहले आपको सेटल करना है अपना डेस्टिनेशन, कि आपको जाना कहाँ है. हम्म, उसको सेट करिए, उस पे फोकस करिए, उसको अचीव करना है. उसके बाद जो आप करना चाहोगे वो होगा. मैंने कितने परसेंट मेहनत की है? अगर मेरे एज पर मी, मैंने 5% मेहनत की है जो मुझे इतना मिला है. मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर मैं 50% मेहनत कर लेता तो मैं टॉप 10 में होता. रियलिटी बताता हूँ एज पर मी. हम्म, बिल्कुल बिल्कुल. अभी कौन भाई, हम्म, मैंने इंडिया के अंदर 28 स्टेट है, जिसमें से मैंने 14 स्टेट घूमे इंडिया के. हम्म, पूरा कश्मीर, हम्म, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, नेपाल. मैं आउट ऑफ कंट्री भी गया हूँ, नेपाल गया हूँ, अच्छा. असम गया हूँ, हम्म, कर्नाटक गया हूँ. और क्या नाम है, उसके बाद अगर आप आ जाइए आ, महाराष्ट्र आ जाइए, हम्म, गोवा गया हूँ. उसके बाद राजस्थान पूरा देखा है, यूपी देखा है. ओके. ये मतलब 14 स्टेट मैंने देखे हैं. तो मैंने वहां लोगों को यही ऑब्जर्व किया है कि लोग कैसे कैसे रहते हैं. डिफरेंट स्टेट में गए तो डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट लोग. मेरे को मैंने लैंग्वेज बहुत सीखी है कमल भाई. फर्स्ट हम्म, मैंने सबसे पहले जो मेरी लैंग्वेज थी हमारे उसमें, एज यू नो, उर्दू सिखाते हैं और अरबी सिखाते हैं, सही. दोनों कंप्लीट की. बिल्कुल. उसके साथ साथ मैंने इंग्लिश हिंदी किया. फिर हम्म, उसके बाद मैंने इंग्लिश किया. फिर हम्म, मैं कुछ टाइम कश्मीर रहा तो वहां पे मैंने बहुत सारी चीजें अडॉप्ट की. फिर मुझे कश्मीरी आ गई वहां पे हम्म, बहुत अच्छे से. हम्म, तो मैंने जो मेरी स्कूलिंग थी, जो 10th क्लास थी, वो एक स्कूल था, वो हम्म, क्रिश्चियनों का स्कूल था, वो टर्किश वालों का था.
तो वहां पे मैंने टर्किश अडॉप्ट की। अच्छा। तो हाँ, उसके बाद मैंने एक चीज किया कि यार लोग जॉब क्यों करते हैं, हम्म। बिजनेस क्यों नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, लोग जॉब को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू बिजनेस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं भी आपसे, मेरी पहले भी डिस्कशन हुई है जब आप बताते थे कि आपके पेरेंट्स भी आपको फोर्स करते थे कि जॉब करो जॉब करो, लेकिन आपका टारगेट यस, एकदम क्लियर डेफिनेटली। था, जो कि मैंने भी आपको बताया था कि आपका अगर टारगेट क्लियर है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर जॉब, सॉरी यू शुड गो फॉर बिजनेस। सो आप बिजनेस। यंगस्टर्स, बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे साथ शायद ये वीडियोस देखेंगे भी, तो वो भी जी जी। इस जॉब या इस बिजनेस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो आप उनको क्या सजेशन दोगे, कोई ऐसी ऐसी बात जो उनके बहुत काम की हो, कुछ ऐसा बताना चाहोगे आप यंगस्टर्स को जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स देखिए, हैं? हाँ, हम्म। पहली चीज तो कॉल भाई, जब स्कूलिंग होती है ना, हम्म। हम लोग ना उस टाइम फोकस नहीं करते हैं, हम सारे हम्म। सब्जेक्ट को साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल। हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि हमारा जो एक सब्जेक्ट इतना स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसके अंदर, हमारी इतनी हम्म। मजबूती होनी चाहिए कि 90% मैं इसको आसानी से कर सकता हूँ। कल को मुझे जॉब नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता, ये भी एक बिजनेस है सर। हम्म। मैंने कितने लोग ऐसे देखे, आईएएस आईपीएस इंजीनियर, बड़े बड़े कंपनीज में, दे आर जस्ट लिविंग जॉब, दे आर जस्ट डूइंग दिस काइंड ऑफ बिजनेस। हम्म। और आज के टाइम में डिजिटल हो गया है इंडिया, बिल्कुल। तो हमें थोड़ा सा डिजिटल बनना पड़ेगा। अभी सपोज करो सर, विद इन मेरा टारगेट है, मैंने अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है विद इन 5 days आएगा। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो मुंबई रहता है, हम्म। तो उसके एटलीस्ट 70,000 सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर। ओ वाओ। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि यू शुड गिव द क्लास ऑन यूट्यूब। मैंने कहा यार एक्चुअली आई डोंट हैव टाइम। अरे आर यू मैड, राइट नाउ इट इज द डिजिटल टाइम, राइट। you should be digital. If राइट। राइट। you are not digital, how much you are earning? Only 50,000, 70,000. राइट। But that would be better than you if you are just giving the good content on YouTube. You are teaching well. Definitely people will link you. यस यस। They will connect with you. फिर उसके बाद कमल, मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया अपना यूट्यूब चैनल, विद इन 5 days हुए हैं, 5 to 7 days। आपने मेरे नया अभी सब्सक्राइब चैनल हो स्टार्ट गए। किया? ओके। जी। क्या नाम है अभी चैनल का? मेरे विद इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन धौज। ओके, वेरी गुड। तो अभी विद इन कमल भाई, अभी विद इन 5 days के अंदर मेरे 500 से अबव सब्सक्राइबर हो गए हैं। 5 days का बता रहा हूँ मैं आपको। वाओ। और होप सो अगर मैं ऐसे ही रहा, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ बहुत अच्छा, मैं उसके लिए क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ, हर चीज में कर रहा हूँ। अभी मेरा टारगेट है कि पहले मुझे 1000 सब्सक्राइबर करने हैं और मोनेटाइज करना है। और टाइम वाओ। मेरा वॉच होते ही मोनेटाइज हो जाएगा मेरा चैनल। और मेरा टारगेट है विद इन नेक्स्ट अपकमिंग संडे तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। what तो what do you mean by monetize? Monetize means यू like, डोंट नो, नहीं, मोनेटाइज आई विल का एक्सप्लेन मतलब इट। यही कि आप मनी यूट्यूब से आपको मिलेगी, या राइट? वो डेफिनेटली तो आपको डेफिनेटली। काफी लेटर स्टेज पे मिलती है, आई थिंक 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स चाहिए होती है, राइट? आई विल टेल यू, नहीं अभी ऐसा नहीं है। अभी कॉल भाई ऐसा चल रहा है कि सपोज करो आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, देन मोनेटाइज हो जाएगा आपका यूट्यूब चैनल। बिल्कुल। उसके बाद जैसे आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और वॉच टाइम होगा, व्यूज मिलेंगे। अगर सपोज करो एक दिन में आपको 1000 व्यूज मिलते हैं आपके यूट्यूब चैनल पर, तो आपको पर डे 2000 रुपए मिलेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। उससे पहले करते हैं, सपोज करो आपके 100 व्यूज आते हैं, तो डेफिनेटली आपके 100 रुपीज आने स्टार्ट हो जाएंगे। बट राइट। 1000 वॉच टाइम होना चाहिए, को नो कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए उसके अंदर, देन आपका यू कैन ग्रो इंटरनेट, ऑन। इंटरनेट आई थिंक थोड़ा सा स्टेबल नहीं है, या फिर मेरा स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा बीच में कट रहा है। नो प्रॉब्लम, वी कैन मैनेज। कट रहा है अभी? हाँ अभी ठीक है। ठीक है, ओके। ओके, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि यूट्यूब में मोनेटाइज आप करोगे लेटर स्टेज पे, लेकिन अभी आपका फोकस है लोगों की हेल्प करने पे, राइट? डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। अभी जो जिस एरिया में कॉल भाई मैं रह रहा हूँ, वो एकदम रूरल एरिया है। वहाँ हाँ लोग पे नहीं कर पाते, मोस्टली जो पे करते हैं वो 500 करते हैं। हाँ। और एक महीने की फी 500 एट लीस्ट बहुत कम है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल, मिनिमम है। मैं समझ सकता हूँ। जिसमें आपको एसी प्रोवाइड की जा रही है, हम्म। जिसमें आपको बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जा रही हैं, जिसमें आपको हम्म। जीके कराई जा रही है,
बहुत सारी चीजें कराई जा रही है, प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं उनके अंदर, मेरे पास 10 बंदे ऐसे हैं, दोज हु आर टू मच पुअर, देयर फैमिली इज नॉट एबल टू पे, they are in a critical condition, financial problem. So I Right, just say that no issue, you can just join us. Definitely, I will teach you. right, right. One day they will grow up. Definitely, they will bless me. I need also prayer for others. Definitely. सो ये जानकर बहुत खुशी हुई वसीम कि आप मतलब उन लोगों की हेल्प कर रहे हो। एक तो आप रूरल एरिया में जो लोगों को पढ़ा रहे हो, जो कि बहुत कम लोग जी ही ऐसा कर पाते हैं, और जिनके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, आप उनकी बिना फाइनेंस लिए ही आप उनकी हेल्प करते हो, तो हैट्स ऑफ टू यू। काफी अच्छा काम कर जी रहे हो। माय आर बेस्ट विशेस विद यू। सो जी आपको मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कई बार ऐसा भी होता है लाइफ में हम सब की, कई ऐसी चीजें आती हैं जो कि बहुत डिमोरलाइज करती हैं, जब वर्स्ट सिचुएशंस आती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो? कभी आप ऐसे डिमोरलाइज हुए हो, या फिर आप हमेशा ही मोटिवेटेड रहते हो? नहीं नहीं सर, बहुत बार हुआ हूँ ऐसे। अच्छा, तो आप क्या डिमोटिवेट करते हो? बहुत बार हुआ हूँ सर लाइफ में, हम्म। क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गया था एक बार लाइफ में बहुत ज्यादा कि यार लाइफ क्या है, कहना क्या हाँ। चाहती है। एक बार मेरी फैमिली ने बोला आपको जॉब करनी चाहिए। हम्म। मैंने बोला नहीं, मैं तो स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा। तो हम्म। उस टाइम मेरी फैमिली ने बोला कि देख लो आपके हाथ में है, क्योंकि हम्म। उस टाइम जब मैंने एमबीए किया, एमबीए करने के बाद मेरे पास बहुत सारी कंपनियों के लिंकअप आए, कॉल आई, हम्म। जयपुर से आया, इन्फोसिस, मल्टीनेशनल कंपनीज से आई। तो हम्म। उस टाइम मैंने क्या करा, गिव अप कर दिया कि आई डोंट वांट टू डू जॉब, आई जस्ट वांट टू डू माय बिजनेस। हम्म। लेकिन जब मैंने जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पास एक बार 50 स्टूडेंट हो गए। फिर हम्म। बीच में ऐसा लूप होल आया, बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन आया कि मेरे पास 20 स्टूडेंट थे। व्हाट हम्म। शुड आई डू नाउ? मुझे वहां इतना फ्रस्ट्रेट हुआ कि यार मुझे ये सब लीव करना चाहिए, वंस अगेन आई शुड डू जॉब। बिल्कुल। लेकिन आई डोंट हैव एक्सपीरियंस, आई वाज रो हैंड, इट मींस हम्म। इनएक्सपीरियंस। जॉब में आपको एक्सपीरियंस उसके नहीं था? बाद फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया थोड़ा सा। फिर मेरा एक क्या हुआ, मेरा गवर्नमेंट से एक लिंकअप बन गया, और उसके बाद मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कुछ क्लासेस मिल गई गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर। हम्म। तो वहां मुझे एक क्लास के 1 घंटे के 4,000 रुपए मिलते थे। अच्छा, वेरी गुड। तो मेरी 10 क्लास होती थी पूरे हम्म। 1 मंथ के अंदर। रोटेशनल क्लासेस होती थी, 1 मंथ के अंदर 10 क्लासेस मिलती थी, एक क्लास से मुझे 4,000 रुपए मिलते थे। तो इट मीन्स दैट 40,000 हो गए। तो हम्म। यहाँ से मैंने थोड़ा रनअप किया, फिर मैंने अपने आप को फिर देखा कि हम्म। क्या मैं इस जॉब के लिए सही हूँ, हम्म। क्या मैं बिजनेस के लिए सही हूँ। फिर हम्म। अपने आप में एक क्वेश्चन किया कि यार अगर मैं 50,000 भी कमाता हूँ तो क्या मैं अपनी फैमिली को लेके चल सकता हूँ? हम्म। बिफोर मैरिज की बात बता रहा हूँ सर, आफ्टर मैरिज से पहले तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ, उसके बाद में देन आई विल टेल यू। तो उसके बाद मैंने सोचा 50,000 में मुझे एक जगह भी लेनी है, मुझे एक अपना सेंटर भी बनाना है, मैं हम्म। कैसे कर पाऊंगा अकेला? हम्म। उसके बाद कुछ अपने भी डिजायर्स होती हैं, घूमना फिरना, कपड़े, ये सब भी होते हैं, वो भी मैनेज करना है। बिल्कुल। वंस अगेन फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, फिर मैंने एक टारगेट रखा सर। टारगेट ये था इस बार मेरा, मैंने ऐसे एडवर्टीजमेंट की कि मुझे स्कूल फोकस कर टारगेट करने हैं। हम्म। सपोज करो मेरे गांव के अंदर 15 स्कूल हैं, क्या मैं एक स्कूल से 10 बच्चे नहीं ले सकता? हम्म। सॉरी। तो मैंने जैसी ये एडवर्टीजमेंट स्टार्ट की, तो हम्म। वहां से मेरे पास बच्चे आने स्टार्ट हो गए कि वेरी हाँ, गुड। वसीम सर इज टीचिंग वेल, ही तो इज वर्किंग एडवर्टीजमेंट आप वेल, कैसे ही इज करते थे? वर्किंग मतलब हार्डली। एडवर्टीजमेंट का कोई तरीका था आपका? एडवर्टीजमेंट आप कैसे करते नो थे? नो, एडवर्टीजमेंट जो मैं करता था वो सर इस हिसाब से करता था। सपोज करो मैं एक स्कूल गया, वहां हम्म। पे मैंने अपने बारे में इंट्रोड्यूस किया, मैंने हम्म। उनको बताया कि सर हम ऐसे ऐसे क्लास के पे करते लेते हैं, हम्म। चार्जेस लेते हैं, बट आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम्म। तो उनके माइंड में एक वो बन जाती थी कि हाँ हाँ सही कह रहे हैं। तो हम्म। जब उसको मैं बताता था कि बच्चों को हाउ टू गेट अप इन योर लाइफ, हम्म। हाउ टू सेटल योर सेल्फ, हम्म। how to earn money. Why? Because after completing 12th, BTech, whatever they have completed student, they are not able to earn money. डेफिनेटली। They just want to get job. Yes, They and never think majority that of कि the should I students have do the job? same problem. Majority. हाँ, everyone has got the same problem. Yes, yes. और मेरा मानना है एज पर मी कि जब स्टूडेंट 10th कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही शुड अर्न मनी। Definitely, definitely. सर इजराइल का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। इजराइल एक छोटी सी कंट्री है सर। जी। वहां के जो बच्चे हैं, वहां जी। का जो लोगों का स्टाइल है, हम्म। they are
टू मच यूनिक, नोबडी कैन अडॉप्ट देयर स्टाइल एंड एवरीथिंग। सो बिल्कुल। वो हर चीज की मार्केटिंग, लोगों को, बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे ग्रो अप कराते हैं कि ही कैन नॉट, नोबडी कैन डिफीट हिम, हम्म। इसे कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल। वो इतना पावरफुल होता है हर चीज में। सर हमारे यहाँ पे बच्चों को फोन दिए जाते हैं, हम्म। वहां बच्चे को आर्चरी सिखाया जाता है, तीरंदाजी। वाह। जब बच्चा ग्रो अप करता है 10th के बाद, उस बच्चे को सिखाया जाता है कि हाउ टू बिकम। हम्म। जब बच्चा सर ग्रेजुएशन कर लेता है, ग्रेजुएशन के बाद आपको डिग्री जब मिलेगी, जब तक आप 10 लाख रुपए नहीं कमाओगे। हम्म। उनके माइंड ऐसे वॉश कर दिए गए सर कि डेफिनेटली वो अर्न करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सही हमारे है। यहाँ पे हम्म। फैमिलीज सपोर्ट कर रही है, हर चीज कर रही है, फिर भी हम ग्रो नहीं हो रहे हैं, क्यों? एक्चुअल में कुछ ज्यादा ही सपोर्ट हम मतलब अपने चिल्ड्रन बच्चों को देते हैं, उनको खुद के कदम पे खड़े होने नहीं देते हैं। तो एग्जैक्टली, पैम्परिंग कुछ ज्यादा एग्जैक्टली, है। आई थिंक कि ये भी बहुत एक रीजन ज्यादा। हो सकता है कि बच्चे अपने पाँव नहीं पे सर, नहीं मैंने खड़े एक हो चीज पाते। और देखी है, हम्म। सर मैंने एक चीज और सीखी है अपने देश से, कि हमारे देश में क्या होता है कि जब बच्चा शादी हो जाती है ना, उसके बाद भी अगर वो अर्निंग नहीं कर रहा है, हम्म। उसको स्कोर नहीं करेंगे, उसे बिल्कुल। खुद खिलाएंगे पेरेंट्स। मैंने ये हाँ। देखा है खुद ने। सही है। ये कितनी बड़ी बात है सर। ये अगर अब नहीं कमाएगा तो कब कमाएगा? बिल्कुल। सर डेफिनेटली। इसके, इस एक स्टोरी, मैंने बहुत बड़ी स्टोरी थी, नहीं सुना पाऊंगा, मैंने कम से कम विद इन 1 ईयर में कंप्लीट की थी। शिव खेड़ा का नाम सुना है आपने सर? बिल्कुल सुना है, बहुत अच्छे लेखक तो हैं। यूविन से मैंने वो पढ़ी थी। हम्म। बहुत बड़ी बड़ी अच्छी स्टोरी थी, उससे मैं इतना इंस्पायर्ड हुआ था रियली। उस स्टोरी ने मेरी लाइफ चेंज की थी। हम्म। मैंने 2-3 बुकें पढ़ी है, मैंने ज्यादा बुक नहीं पढ़ी है। एक तो यूविन यूविन पढ़ी है मैंने, हम्म। एनविन जीत आपकी है शिव खेड़ा की। जीत एक आपकी। संदीप सर की पढ़ी है। हम्म। एक हाफ गर्लफ्रेंड पढ़ी है, मैंने उससे कुछ चीजें भी ली है। मैंने आपको हम्म। ऑलरेडी बताया कि मैंने मूवी से ज्यादा सीखा है एज हाँ। कम्पेयर टू अदर थिंग। जी जी जी। तो ऐसे ही मैं ग्रो अप किया हूँ, पर मुझे ये मानना होता है कि मैंने रियली 90% वर्क हार्ड नहीं किया, मैंने 5% किया जो मुझे इतना मिला है। अगर रियली मैं 90% करता तो मैं बहुत ज्यादा ग्रो अप कर सकता। बिल्कुल, रियलिटी। बहुत सही बहुत सही। तो वसीम, काफी हम सब इंस्पायर्ड हैं आपकी बात से, मतलब काफी अच्छे से आपने बताया। थैंक यू सर। तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। अगर आप जी अपनी सर। जिंदगी पे या कुछ भी एक लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक बुक लिखना चाहें, तो आप उसको क्या नाम देंगे? सर बुक, या किस बारे में होगी वो बुक? वो सर बुक दो ही चीजों पे होगी। अच्छा। द फर्स्ट वन इज बायोग्राफी, बायोग्राफी, ओके। कि हाउ कैन पीपल स्ट्रगल, कहाँ से और कहाँ उठ सकता है बिल्कुल बिल्कुल। एक बंदा। मैंने एक मूवी देखी थी स्लम डॉग मिलीनियर। जी जी जी। एक बंदा स्लम एरिया से उठ के कहाँ ग्रो अप कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे नाम है मेरे पास, हम्म। लूंगा नहीं। मैंने हम्म। उन लोगों को अपने फेस टू फेस देखा है कि वो हम्म। लोग कहाँ से उठ के कहाँ गए हैं। तो बिल्कुल। जिंदगी में बायोग्राफी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हम्म। चेंज होते हैं, इसी से लोग इंस्पायर्ड होते हैं। तो आप पर अपनी कुछ लोग, बायोग्राफी ऐसा बनाना चाहते हो, आप अपनी बायोग्राफी लिखोगे जो इंस्पायर करेगी लोगों को? हाँ टू मच ऐसे भी नहीं कि बस कुछ लोग उससे कुछ ही चीज सीखे, अच्छा। 90% 100% चीजें सीखे। ओके ओके, तो आपको अपनी जिंदगी को हर, एक किताब बनाना है सबसे पहले। बिल्कुल सर बिल्कुल। रियलिटी बताता हूँ, हाँ। मेरे वहां पे 13 गांव है। हम्म। वहां पे कम से कम 1 से 1.5 लाख पॉपुलेशन है। हम्म। मतलब उसमें से 90% लोग मुझे जानते हैं। वाह। उससे पहले मुझे कोई नहीं जानता था कि कौन वसीम है, कहाँ है। हम्म। जैसे मैंने ग्रो किया वहां पे लोगों, अच्छा ये है वसीम सर, ये है। आज विदाउट एडवर्टीजमेंट के इतने लोग आते हैं, इतने कनेक्शन होते जा रहे हैं। काफी कॉलेज मेरे साथ में अटैचमेंट में, पीटीएलआर, डीआईटीएमआर, एक्लोन, मानव रचना, डीवीएम, जीडी गोइनका, एपीजे, हम्म। सत्या, रतन, मैनी मोर कॉलेजेस आर। हम्म। ओके क्योंकि ओके। जब इंसान ग्रो अप करता है ना सर, हम्म। सपोज करो अभी आपके साथ कोई नहीं है, अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, कोई भी नहीं बिल्कुल। रहेगा आपके साथ, हम्म। आपको खुद स्ट्रगल करना है। आप सोचते हो यार ये भी जुड़ जाए, ये भी जुड़ जाए, ये नहीं नहीं, आपको यू हैव टू अबैंडन, यू हैव टू लीव एवरीथिंग राइट नाउ, बिकॉज यू हैव टू वर्क योरसेल्फ, यू हम्म। हैव टू वर्क हार्ड योरसेल्फ। कोई आपसे कंपनी नहीं देगा, कोई आपकी, बस ओनली लोग आपकी प्रेज करेंगे आगे से, पीछे से आपको बैक बाइट करेंगे। हम्म। But जिस दिन you have become a successful, so people will connect you. हम्म। Yes, this one, this one, this all will connect you. फिर डेफिनेटली एक चैन बन जाएगी, फिर वो आपको
उठाने में रखेंगे, लोग कहते हैं गिराने में। अब गिराएगा नहीं कोई, उठाएगा फिर आपको। लोग उठाएंगे। गिरा रहे हैं, बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल, गिरा रहे हैं आपको, फिर भी आप उठ रहे हो, सही क्योंकि बात है। आप ऐसे पीक टाइम पे आ गए हो कि आप नाउ यू कैन हैंडल कर सकते हो हर चीज को। कुछ बट लोग, कभी कभी ऐसे लूप होल्स। मैं एक सेइंग कहना चाहूंगा छोटा सा। कुछ देखो, जी लोग क्या है, पत्थर मारते हैं, कुछ लोग उन्हीं पत्थरों को दर्द दर्द का एहसास लेते हैं, और कुछ लोग उन्हीं पत्थरों से सीढ़ियां बना के ऊपर बढ़ जाते हैं। तो वही आप कहना डेफिनेटली, चाहते हो, आई थिंक। डेफिनेटली, एग्जैक्टली। बिल्कुल। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर said that हम्म don't change originality for the sake of others, because no one can play the role better than you, so बिल्कुल, be your the best। तो हम डेफिनेटली। खुद में अपने आप में बेस्ट बनना है। राइट बुक्स राइट। पढ़नी चाहिए हमें, हम्म एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें, हम्म, डेली अपने आप को मोटिवेट करना है, हमें बिल्कुल, डांस भी करना चाहिए, हर नहीं, चीज करनी चाहिए। मैंने हर चीज की अपनी लाइफ में, इस चीज में नहीं, मैं ऐसे नहीं हूँ कि मुझे इस चीज का मलाल है। हम्म। एक चीज मैंने नहीं किया था, वो भी आपने थोड़ा सा मुझे करवा दिया था आपकी अच्छा शादी में, याद हो तो। अच्छा। बिल्कुल याद बिल्कुल। लो, थैंक सही में मैं यू। अपने घर भी गया था, तो मैं वहां भी बहुत अच्छे से गया। अच्छा तो अच्छा। रियली बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे, बहुत सारी चीजें सीखी हैं, कैसे बोलना है, कैसे बातें करनी है, डेफिनेटली आपसे सीखा सर, थैंक यू बहुत थैंक सारी यू। चीजें। मैं मैं रियलिटी बताता हूँ, 90% मैंने दूसरों से सीखा है बिल्कुल। चीजें, बहुत सारी चीजें सीखी है। हम्म मेरे को 10% आता था, हम्म मेरे को 10% आता था, मैंने वो 10% को 90% लोगों से सीख के 100% किया। हम्म, एक कहावत है, आई एम नॉट द बेस्ट बट बेटर देन द रेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीजें सर बहुत प्यार से आपको सॉफ्टली बोलना है, किसी से जेलसी नहीं करनी है। इफ somebody इज मींस arguing with you, always smile on your face, notice you, hug always, हम्म, always just shake the hand, these things are important अगर बिल्कुल, आगे बढ़ना है तो। राइट राइट। बहुत सही Could I वसीम water भाई। 1 minute? Could I have water? यस यस डेफिनेटली Could I डेफिनेटली। have water? नो नो, थैंक यू। सो ये थे वसीम जी, वसीम भाई। फ्रेंड्स, व्यूअर्स, आप जो भी देख रहे हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग है। और जब भी मैं इनसे मिलता हूँ, काफी इंस्पायर हो जाता हूँ। सो Sorry to disturb। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सो वसीम भाई, मुझे अगर जाते जाते ऐसी कोई तीन चीजें आपसे पूछनी हो, जो कि आप ऐसे लोगों को बताना चाहें जो आपके लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, तो ऐसी क्या तीन चीजें होंगी जो कि आप उन्हें सजेस्ट करोगे कि आपके लेवल तक पहुंचने के लिए उन्हें ये तीन चीजें करनी बहुत जरूरी है? ऐसी कोई भी तीन चीजें जो आपके दिमाग में आ रही हैं। पहली चीज सर, आई वांट टू टेल, मेहनत करते रहिए अपने डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए। बिल्कुल कभी बिल्कुल। ये नहीं सोचे कि बीच में यार मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आप हम्म पहुंचने वाले हो और हम्म आप सोच रहे हो यार नहीं हो पाएगा, तो वहीं हम्म आपकी लाइफ खत्म है। हम्म आप पहुंच भी गए और फिर हम्म उसके बाद बैक हो गए, खत्म लाइफ। हम्म, अब जब कहते हैं ना कि जब किसी चीज का पहुंचना ही है, तो उसको देख भी लीजिए कि होगा क्या आगे से। सही बात है। कई बार लोग क्या होते हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते हैं और रुक के वापस आ जाते पहुंचने के बाद वो वहां से स्किप कर देते हैं। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोगों के ये साथ, दुनिया का मेरे सबसे, साथ भी ऐसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। रियली एग्जैक्टली, ओके। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल ही तो हो जाओगे आप। बिल्कुल दोबारा सीखिए, आपने कुछ सीखा है उससे। सही है। सपोज करिए किसी ने बोला है कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, हम्म, ठोकर खाने से अकल आती है। सही अगर आज बात। ठोकर खा ली यहाँ पे, तो कल यहाँ से नहीं जाओ, आप इधर से जाओगे, बहुत सही, तो बहुत सही। बिल्कुल सीखोगे वहां से। पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपको ना एक कनेक्शन बनाना है, एक नेटवर्किंग बनाना है, एक बॉन्ड हम्म, बनानी है, हम्म, लोगों से जुड़ना है। हम्म, पहले नाम चाहिए आपको, पैसा खुद आ जाएगा। हम्म, संदीप सर ने बोला है, अभी सूरज डूबा नहीं है, जरा सी शाम होने दो, हम्म, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो, वाह। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं हम्म, खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने नाम दो। तो होने दो। बहुत सही, बहुत सही। बहुत बढ़िया। डेफिनेटली, तो आपको पहले नाम कमाना है, बिल्कुल। जब नाम आ जाएगा, डेफिनेटली यू विल अर्न। और उसके लिए आप कह रहे हो कि और जिंदगी नेटवर्किंग बढ़िया बनाना करने बहुत वाले के जरूरी लिए, है। हम्म नेटवर्किंग बनाना बहुत जरूरी है, हम्म बहुत जरूरी है। 90% मैं यही कहता हूँ लोगों से, हम्म, एवरीबडी नीड्स टू मेक अ नेटवर्किंग। इफ यू हैव गुड नेटवर्किंग, आप दुनिया को हिला सकते हो रियली। बहुत सही। और आखिरी चीज क्या बताना चाहेंगे? लास्ट में ये है, आप अपने डेली रूटीन को फॉलो करिए। हम्म डेली
टाइम को बहुत समझना है। जहां टाइम को आपने नहीं समझा वही टाइम आपको लात मार देगा, किक कर देगा, आउट कर देगा। मेरा हर चीज टाइम से होता है सर। अगर मुझे क्लास लेनी है 12 बजे तो मैं कहीं भी जाऊंगा, मुझे 12 बजे पहुंचना है अपने सेंटर पे। तो मेक अ शेड्यूल, आपका ये लास्ट है। तो खेलने जाना ही है। शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। शेड्यूल अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। अच्छा अच्छा। लेटर और सूनर आप 100% कामयाब होंगे। बट आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, यू आर नॉट नथिंग। तो रिवाइंड एक चीज करना और हो, बताऊंगा। जी जी जी, तो रिवाइंड करना हो, आपने 3 चीजें बताई। पहली चीज आपने बताई कि कभी भी अपने आप को रोको मत, एंड अगर फेल भी हो रहे हो तो फेल करो, लेकिन करो। दूसरी चीज प्रोसीड आपने बताई, इन योर जी लाइफ। जी जी, दूसरी चीज आपने बताई नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, लोगों से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी बिजनेस लोगों से जुड़े बिना हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली और तीसरी चीज डेफिनेटली। आपने बनाई कि अपना शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। अगर शेड्यूल नहीं रखोगे तो आप खो जाओगे, आपको खोने से बचाने के लिए शेड्यूल रखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत अच्छा लास्ट में लगा। एक छोटी सी चीज बताऊंगा सर, छोटी सी बिल्कुल चीज बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं हम्म। सर, हमारे पास में डायरी होना बहुत जरूरी है और एक पेन होना बहुत जरूरी है। जी जी। ये कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र है। बिल्कुल। उसके लिए हमें क्या करना है, हम्म। क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट, गॉड इज परफेक्ट। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। बहुत सही बहुत सही। और याददाश्त एक ऐसी चीज है, जिस चीज को आप याद करने की कोशिश करोगे वो आपसे याद नहीं होगी, और जिसको आप याद करने की कोशिश नहीं करोगे वो आपसे याद हो जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। आर बिल्कुल। यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं समझ रहा तो हूँ। सर कई बार ऐसा होता है हमसे ना, कुछ चीजें याद होती है, बड़ी अच्छा कोई आइडिया आया हमारे माइंड में, बट हमें उस टाइम तो वो याद है। जैसे हम कहीं गए वहां पे किसी एनवायरमेंट में, हम वहां पे मिंगल हुए, तो हमारे अंदर क्या होगी, फॉरगेटनेस हो जाएगी। हाँ, मतलब भूल गए हमारी हम मेमोरी उसको। जो है लिमिटेड है। लिमिटेड है, शार्प नहीं है। शार्प है मान लेते हैं, बट शार्प हर फील्ड में नहीं है ना। कहीं कहीं फील्ड है वहां आपकी शार्प होगी मेमोरी, नो इश्यू। तो इसलिए नोटबुक भी होनी चाहिए हमारे पास, ये बहुत आगे तक लेके जाएगी। बहुत सही बहुत सही। तो एनी तो क्वेश्चन बहुत अच्छा राइट लगा नाउ? वसीम भाई आपसे बात करके, और थैंक यू। बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे ये वीडियो देख के, और तो बहुत मस्ट जल्द। पे विजिट एट माय सेंटर, दैट वुड बी गुड, इट्स माय प्लेजर। हाँ बिल्कुल। चलो one वसीम भाई, थैंक यू because सो right now मच। too much gathering, सॉरी। right now too much gathering and everybody want to see you when you come, so you should motivate them. Yes, yes, yes. Definitely, definitely. Thank you so much. Thanks for asking. Okay, so we'll end this session. Thank you so much, and take Okay, care. it's my Bye. pleasure.